BJP's national president is with us. Sir, we have completed the entire election campaign that you've really seen. Where do you think the BJP will do so well? Because you've saturated in the north. Do you think that you'll get gains from the east and the south, especially from Bengal, Odisha, and probably Andhra, Telangana, Tamil Nadu? Is that where your party is expecting to go? First of all, I would like to say that in north, we will maintain our saturation and we will maintain our tally. Made by Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh will increase our tally. And in north, we will remain intact. Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, whatever the number of seats we got. And if you talk about West Bengal, we are going to touch 30 plus. And we had 18 seats. So we are nearly doubling ourselves in West Bengal. In Orissa, there are 21 seats. We'll be able to cross 18 plus. That will be there. In Telangana, we'll at least out of 6, 4 we are going to win, and 4 to 5 we are going to win. And of course, we want 6 out of 6, but in circumstances, let's be practical. So we'll be getting 4 to 5 seats, and the alliance will be winning. In Telangana, we'll double ourselves. And in Tamil Nadu, we are going to open our account there. In the sense, we are going to be successful, but our vote share is going to increase in Tamil Nadu a lot. We are going to start with Kerala also. So all these things together, we are going to maintain Maharashtra. We are going to maintain ourselves in Bihar. So all this taking into consideration, we feel that we are very comfortable under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, and we will be crossing 370 BJP itself and NDA 400 plus. So JP Nadda ji, when first BJP is saying that it will cost 370, Modi ji also said that is up ki baar 400 par. But your opponents, be it Rahul Gandhi, be it Arvind Kejriwal, everybody is now saying BJP will be below 200. What do you have to say to your opponents? ऐसा अमन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके एजेंडा, यानी इनको अपना आम आदमी पार्टी को क्या आ रहा है, कांग्रेस को क्या आ रहा है, ये वो चर्चा नहीं कर रहे हैं. ये इटसेल्फ ये बताता है कि the BJP is dominating the agenda and BJP is dominating the scenario. और अब ये चर्चा क्या करते हैं कि 400 पार नहीं करेंगे. इसका मतलब आप मान रहे हो ना कि हम 400 के पास हैं. पहली बात तो ये है. और वो भारतीय जनता पार्टी है. आप कहाँ खड़े हैं? आप तो ये कभी बोलते नहीं कि मैं 50 से नीचे रहूँगा या 50 से ऊपर जाऊँगा. आपने तो कोई नंबर बताया नहीं है. तो ये आपके बारे में, और आप देखिए कोई 160 बताता है, दूसरा आता है वो 200 बताता है, कोई फिर उसका 230 बताता है. आपने 4-5 लोगों से और पूछा होता तो 400 तक पहुंच गए थे. ये आपने अगर 2-3 लोगों से पूछ लिया होता, क्योंकि हर बार ये बढ़ा रहे थे, खुद ही बढ़ा रहे थे. क्यों? क्योंकि आप लोग इनकी हंसी कर रहे थे कि भाई कुछ तो फैक्चुअल बोलो, कुछ तो फैक्चुअल बोलो. तो ऐसे ही अगर 3-4 और हमारे पत्रकार बंधुओं ने कृपा की होती इन पर, तो ये 400 पार कर चुके होते. और सही बात यह है कि इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है और पानी बहुत बह चुका है. अब इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है. और प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जनता जनमानस के दिल में बसे हुए हैं, और वही अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं. दे आर वोटिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी एंड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो वी आर वेरी कंफर्टेबल and we are going to maintain our tally and we are going to increase in these states which I have talked about. नड्डा जी, एक तरफ पार्टीज है डीएमके की तरह जहाँ पे परिवार का पूरा राज चलता है, गांधी परिवार की भी हम बात करते हैं. एक तरफ ये पार्टी है जहाँ पे आप आम कार्यकर्ता होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रधानमंत्री एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद वो ही इज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आपको लगता है कि ये जो इस तरह की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको क्यों रिजेक्ट करना चाहती है आजकल की, और आने वाले समय में इनको क्यों रिजेक्ट करेंगे लोग? देखिए पायल जी, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये परिवारवादी पार्टियां क्या है. परिवारवादी पार्टी वो हैं जिनके पास पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी से लेकर के, पार्टी के प्रेसिडेंट से लेकर के, और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य से लेकर सब एक ही परिवार के होते हैं. पहली बात. दूसरी बात, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के चली. जब रीजनल एस्पिरेशंस के नाम पर उनको सपोर्ट मिला, बहुत जल्दी ये परिवार की पार्टियों में कन्वर्ट हो गई.
अब परिवार की पार्टियां जो है ये अनसाइंटिफिक है, ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। भारत के प्रजातंत्र को किसी एक परिवार की गुलामी करने की आदत नहीं है और ये उत्तर नहीं है। दे आर नॉट द आंसर टू द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ये भारत के मानवीय, साधारण मानवीय का उत्तर नहीं है। इसलिए मैंने उस समय कहा था कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी समाप्त हो जाएंगी, बहुत हल्ला हुआ, लेकिन मैंने कहा देखो अनसाइंटिफिक चीज़ तो चलती नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी हर बार रो क्यों कर रही है? इसलिए कि आई एम गोइंग टू पास द बैटन टू समबडी एल्स, नॉट टू माई फैमिली मेंबर्स। और तो हुनर आता है, टैलेंट आता है, सबको लगता है कि वी कैन कंट्रीब्यूट, हमारा और साइंटिफिक वे है। तो इसलिए आप इनसे इनके बारे में कहेंगे तो मैं यही कहूँगा आज नहीं तो कल जाना तो है ही, ये तो समाप्त तो होना ही है, उसमें बचेगा क्या? और कितने दिन तक लोग गुलामी करेंगे? और परिवारवाद के में क्या होता है, आइडियोलॉजी नाम की चीज़ नहीं होती है। रीजनल एस्पिरेशंस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हैं और धीरे धीरे डाइल्यूशन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है परिवार को चलाना। अब देखिए, जो मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूँ वो नेशनल पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिक्योर करके अब रीजनल पार्टीज बन रही है। आप देखिए आर्टिकल 370 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशन को ध्यान में रख करके वोटिंग विरोध में की है। उनको देश नहीं समझ में आया, उनको ये नहीं समझ में आया कि करोड़ों लोग देश के जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग, संविधान का पार्ट मानना चाहते हैं। संविधान का पार्ट है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से एक देश में एक निशान विधान प्रधान हो, इसको वो चाहते हैं। अलग लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई स्पेशल पावर्स नहीं होना चाहिए। तो ये बिकॉज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस एट दैट टाइम, तो कांग्रेस पार्टी एक तो परिवार की पार्टी हो गई है। आप लॉन्च पे रीलॉन्च पे रीलॉन्च पे रीलॉन्च कर रहे हैं, अब इसके बाद फिर कीजिएगा रीलॉन्च। हमको तो आदत है ऐसे रीलॉन्च को देखने की। लेकिन सच्चाई ये है कि आप भी धीरे धीरे श्रिंक होते होते आपको मजबूरी हो जाएगी रीजनल एस्पिरेशंस के से। और आप देखिए ना आपकी स्थिति क्या हो गई है कि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होकर के आप छोटे रीजनल पार्टीज़ के साथ जिस तरीके से आपको अलायंस करना पड़ रहा है, और वो आपको सीट्स में डोमिनेट कर रहे हैं, वो आपको शर्तों पर डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है कि यू हैव वीकेंड योरसेल्फ to such a level because of this parivarwad and because of lack of ideology that you are subjugated to regional parties viewpoint. नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी इस टाइम कन्याकुमारी में हैं, कल वो पहुंचे थे, मेडिटेशन 2 दिन तक कर रहे हैं इस लंबे कैंपेन के बाद, पर ये मेडिटेशन भी पॉलिटिकल बना दिया है ऑपोजिशन ने। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये विजुअल्स बाहर क्यों आ रहे हैं, इलेक्टोरेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस का इल्जाम है। आपको लगता है मेडिटेशन एक्सरसाइज जो था इसको पॉलिटिकल बनाना चाहिए था ऑपोजिशन को? ऐसा है, वो बेचारे बौखला गए, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ बुद्धि, अब मैं भ्रष्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मति भंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं बुद्धि काम नहीं करती है। तो बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ अनाप शनाप जवाब देना। अब मैं कल मेरी लास्ट मीटिंग अनंतपुर साहब थी, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर पर मेरी कुलजा माता है। आप बताइए, इज इट नॉट ए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू पे माई रिस्पेक्ट टू माई कुलजा माता? वहाँ से 25 किलोमीटर की दूर पर माँ नैना देवी हैं, तो मैं पहला काम क्या करूँगा? अब उसके भी विजुअल्स आए हैं, आप लोगों ने भी दिखाए हैं। तो ये, और हम लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट नहीं हैं, हम लोग पॉलिटिकल रिलीजियो टूरिस्ट नहीं हैं। हम हमेशा जहाँ जाते हैं, आप मेरे सारे प्रोग्राम को देख लीजिए, देश भर के, जब से मैं अध्यक्ष बना और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री भी था, आप बताइए कि कभी मैं तिरुपति गया और मैं तिरुपति दर्शन न किया हो? आप बताइए कि मैं कभी वाराणसी गया और मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन न किए हों, या काल भैरव के दर्शन न किए हों, वहाँ के कोतवाल का आशीर्वाद न लिया हो? तो ये हमारे यहाँ इनबिल्ट है, हमको इसके लिए कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। ये वहाँ के चाय का दुकान वाला भी जानता है कि काल भैरव के दर्शन करने के बाद हमारे यहाँ चाय पियेंगे। तो ये 2 दिन में नहीं होता है, ये एक हम सतत हमारा प्रयास हम करते हैं। हमारे तो इलेक्शन खत्म होगा तो हम पहला काम क्या करेंगे? इतना लंबा कैंपेन चला है, इतने कामों में जुटे रहे। आखिर भगवान का आशीर्वाद है कि सारा कैंपेन पूरा हुआ, तो हम धन्यवाद देने के लिए और आशीर्वाद मांगने के लिए और ताकत मांगने के लिए तो जाएंगे। इसको वो लोग पॉलिटिकल सोचते हैं जो चुनाव के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शंस, दे ट्राई टू प्रूव, वो लोग करते हैं
जो सेल्फी खींचते हैं और उनको ध्यान में नहीं आता कि बात तो वो देवी के कर रहे हैं लेकिन कोई देवता पीछे कोई और खड़े हैं, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम जो बाहर हैं वो अंदर हैं, जो हम मन से हैं वो हमें। ये लोग ये हैं जो मैंने कई बार बोला कि इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। इनसे कोई पूछ ले कि भाई तुम्हारा गोत्र कौन सा है, तो ये बगल में झांक करके पूछते हैं कि भाई बताओ हमारा गोत्र कौन सा है। तो वो उन लोगों को तकलीफ होती है, हमें तकलीफ नहीं होती है। नड्डा जी, आप मोदी जी की पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप उनकी सरकार में मंत्री भी थे, आप संगठन में भी आप सबसे टॉप पोस्ट पे हैं। ऐसी क्या बात, आपने कभी कोई सरकार देखी जिसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं कर रहा, लोग प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं? तो मोदी जी कहते हैं कि जो बोलता हो वो जरूर करता हो और मोदी है तो मुमकिन है, ये लोग कहते हैं। आपको क्यों लगता है व्हाई इज देयर प्रो इनकम्बेंसी फॉर नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में सत्ता को भोगने के लिए आते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, वो सत्ता में आते हैं सबका समर्थन लेकर के, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह फिर किसी परिवार की सेवा में लग जाते हैं, किसी जाति की सेवा में लग जाते हैं, किसी समुदाय की सेवा में लग जाते हैं, और वह पार्टी और वह सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है, किसी परिवार विशेष की हो जाती है और किसी इलाका विशेष की हो जाती है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में, और वैसे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल जोड़ लें तो 22 साल से ज़्यादा एक स्टेट के हेड के रूप में उन्होंने काम किया है। हर पल, हर दिन, हर घड़ी, हर पहर और हर साल पूरी ताकत से लोगों की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित किया है, एवरी डे। तो ही इज ऑलवेज प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, प्रो अकाउंटेबल, नंबर 1। नंबर 2, द प्रिंसिपल विच ही हैज अडॉप्टेड इज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। He has never singled out in his schemes any particular caste, any particular region, any particular religion, सबको साथ लेकर के चलना। और इस कारण से 10 साल में भारत की जनता ये मान चुकी है कि देश अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में, अगर भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी मोदी जी के नेतृत्व में, ही इज द कैपेबल मैन। लास्ट माइल डिलीवरी होगी तो मोदी है तो मुमकिन है। सैचुरेशन पॉइंट तक लाया जाएगा तो मोदी है तो मुमकिन है। महिलाओं का सशक्तिकरण किया है किसी ने तो मोदी ने किया है। अगर महिलाओं को मेन स्ट्रीमिंग की है तो मोदी जी ने की है। युवाओं को सही में लिप सर्विस छोड़ करके उनको कोई ताकत दी है, तो चाहे स्टार्टअप हो, चाहे स्टैंड अप हो हमारे दलित भाइयों के लिए भी, और चाहे मुद्रा योजना हो, हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो ताकत दी है वो सब दी। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे इन टोटल तो आपके ध्यान में आएगा कि सब देश के 140 करोड़ देशवासियों को ये विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सेफ हैंड्स में है, एंड इन राइट हैंड्स है, दोनों चीज़ें, राइट हैंड एंड सेफ हैंड्स। और इसी कारण से उनका, और मैं एक बात और बता दूं, जो लोग, कोई मान लो कोई कांग्रेसी परिवार का है, वो कांग्रेस को वोट दे देगा लेकिन उसके दिल में भी मोदी बसता है, उनके दिल में भी मोदी बसता है। दे अंडरस्टैंड, वो मानते हैं कि भाई मुकाबला तो कोई नहीं है, लेकिन हम हैं कांग्रेसी परिवार के, इसलिए शायद हम दे दें, और उसमें से बहुत से लोग फिर हमें भी वोट देते हैं। तो इसलिए ये एक परिस्थिति है। और बहुत जगह आपने देखा होगा कि विधानसभा में दूसरी जगह देते हैं लेकिन लोकसभा में देते हैं वो। नड्डा जी, राहुल गांधी ने, अगर हम उनका कैंपेन पूरा देखें, उन्होंने अपना कैंपेन जो पूरा था रिजर्वेशन पे, कास्ट पे, न्याय की वो बात करी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे अगर हम पावर में आते हैं। तो आपको लगता है इसका कोई रेजोनेंस भारत की जनता में अब है इन इशूज का? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो उनके जो ट्यूटर हैं ना, मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी कहा था, ये जो ट्यूटर हैं जो उनके, वो भारत की सरजमी से कटे हुए लोग हैं और वो पिटे हुए लोग हैं। वो एक बार नहीं अनेकों बार पिटे हुए हैं। वो कौन है? लेफ्टिस्ट, अर्बन लेफ्टिस्ट। वो क्लब है जेएनयू का, वो उनके सलाहकार हैं। तो आउटडेटेड, पिटे हुए, घिसे हुए लोग अगर आपके सलाहकार होंगे तो मैं क्या करूंगा? तो आपके से शब्दावली वही निकलेगी, आप वही चीज़ को कहेंगे जो आप ही ने खुद आपके प्रश्न में पूछा कि वो रेजोनेट नहीं कर रहा है। तो रेजोनेट क्यों नहीं कर रहा है?
रेजोनेट इसलिए नहीं कर रहा है कि भारत की जनता उन वास्तविकताओं से निकल चुकी है। वो वास्तविकता नहीं है, वो एक भ्रम है, छल है। ये 60s में चलता था, 70s में चलता था। आज का अब ये 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष आ गया। हम मतलब वन क्वार्टर पूरा कर रहे हैं। तो भारत का नौजवान पढ़ा लिखा है, जानकार है। तुमने अगर उन लोगों की सेवा लेनी है तो तुम जानो, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और फिर अगर तुमने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ ही चलना है, जो ये नारा लगाते हो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, अगर वो ये नारा लगाते हो भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ऐसे आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से लोगों से निकले हुए मंतव्य क्या होगा? और उसको भारत, वो आप राष्ट्र विरोधी हो सकते हो, भारत की जनता राष्ट्र भक्त है, इसलिए वो रेजोनेट नहीं कर रहा है। आप ऐसे समय पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे राहुल गांधी, क्योंकि आप ना ही सिर्फ तजुर्बे में उनसे कई ज्यादा आगे हैं, आपने कई सारे चुनाव देखे भी है, आप जनरल सेक्रेटरी के बतौर भी काम किया, आप क्या एडवाइस देंगे इस समय राहुल गांधी को? हमको हमारी एडवाइस वो क्यों लेंगे, और मैं ऐसे किसी को एडवाइस क्यों दूं? लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, मैं इसको लार्जर कॉज में कहता हूँ, सिर्फ मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये सब जो सेकंड जनरेशन की दृष्टि से कहा जाए, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये वास्तविकता से दूर रही हैं। तो ये एक्चुअली इनकी प्रॉपर नरिशमेंट कहिए, पॉलिटिकल असेसमेंट ट्रेनिंग कहिए, या आप कहिए कि कमिंग फ्रॉम द रैंक्स, ये हुआ नहीं है। तो जब ये नहीं होता है तो उसकी तकलीफ भुगतनी पड़ती है। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे? हम तो यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो सीख लो, अब तो जान लो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं किसी को ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये चाहते हैं कि बीजेपी की तरह इनकी पार्टी चले। अरे 40 साल लगाने पड़ेंगे तुमको, 50 साल लगाने पड़ेंगे। हमारे 5-5 जनरेशन खप गए भाई। डिसिप्लिन 2 दिन में नहीं आता, और संस्कार मॉरल स्ट्रेंथ होती है। Just because I become a president, so everybody is going to follow me? No, this doesn't happen in political party. You have to have your own contribution, your own sacrifice. People should understand. Prime Minister Modi ji is not only because of Prime Minister people, it is the moral strength which he is having, the amount of dedication which he has dedicated. So how does Rahul Gandhi or Akhilesh Yadav inspire one fine morning? The CWC decides that you are there, when one fine morning you come and you say, I'll tear this ordinance, and nobody says nothing. It happens in a political party. Can it happen in BJP? No, it cannot happen. तो देखिए, ये जिन यार्ड स्टिक्स, जिस माध्यम से आप की उत्पत्ति हुई है, वही अनसाइंटिफिक है। तो नतीजा क्या निकलेगा? बाय प्रोडक्ट क्या होगा? वही होगा। तो आप ऐसे ही काम करते रहोगे, और सोशल मीडिया के लिए भी आप अच्छे उपकरण बनोगे, और हम लोगों को भी कभी कभी कुछ देखने को मौका मिलेगा जिससे हम भी अपना मनोरंजन कर लें। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, कुछ दिन उन्होंने पहले बोला, अभी वो बेल पे कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ दिन पहले बोला कि अगर ऑपोजिशन अलायंस जीतता है जून 4 को तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। खैर, उन्होंने अब कहा कि वो सरेंडर कर रहे हैं परसों। उनका ये इल्जाम है कि बीजेपी सारी ऑपोजिशन को जेल भेजना चाहती है। देखिए, आज मैंने अरविंद केजरीवाल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, वो आजकल वो वीडियो से संदेश देते हैं, आप उसको देखिए। मेरे लिए दिक्कत ये हो रही है कि मैं उनको रिस्पेक्टफुल शब्द ही नहीं कह सकता। दुनिया में इतना बड़ा फ्रॉड, फरेब, झूठ की बुनियाद पर पैदा हुआ नेता, और इतना शातिराना तरीके से झूठ बोलना, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। वैसे ऐसी चीज सीखने की नहीं है, लेकिन कम से कम जाने तो सही कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं, इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जो भोली भाली जनता को इमोशनली एक तरीके से इमोशनल करके लोगों चीज़ों को लेना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? अरविंद केजरीवाल अपने व्यक्तित्व का और अपनी पार्टी का क्रेडिबिलिटी इज इन माइनस।
क्रेडिबिलिटी नाम की चीज रही नहीं गई है और वो बेनकाब हो चुके हैं, उनका पर्दा फाश हो चुका है, वो झूठे हैं एक नंबर के, ये स्पष्ट है, भारत की जनता जानती है। वो एंटी पीपल हैं, ये भी जान गई है। वो अपने दोस्तों के भी सगे नहीं है, ये भी दुनिया जान गई है। वो महिलाओं का सम्मान नहीं अपमान करने के लिए बने हैं, ये भी दुनिया जान गई है। भारत की संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जो भारत की संस्कृति है उसके विपरीत में काम करने वाले लोग हैं और ये अर्बन नक्सल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लेफ्टिस्ट और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने वाले के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेशन एनार्की की तरफ ले जाना है। और इनके चीफ मिनिस्टर के रूप में आप जितनी भी चीज़ें देखिएगा वो एनार्किस्ट हैं। मैं अब इस समय गिनाना नहीं शुरू करूँगा, लेकिन विधानसभा की प्रोसीडिंग से लेकर के एज चीफ मिनिस्टर, डिसीशंस, डायरेक्शंस, ऑल आर एनार्किस्ट। तो ये तो लॉक स्टॉक एंड बैरल, इनको जाना भी है और दिल्ली की जनता भेजेगी भी। आप पंजाब में देखिएगा क्या हाल होगा, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। हाँ नड्डा जी, आपने मैं यहाँ बुलाया, आपके घर बिलासपुर में, हिमाचल में, ये ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में हम हैं। मैं आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मोदी 3.0 गवर्नमेंट को कैसे इन्विजन करते हैं? क्या ये यंगर गवर्नमेंट होगा? यंगर टैलेंट को आपको लगता है मौका दिया जाएगा इस बार? ऐसा है कि यंगर हो या ओल्ड हो, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रेरोगेटिव है और वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं मोदी जी के स्वभाव से मैं बताता हूँ कि हमेशा वो नए प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग करने का उनका नयापन होता है। तो ये तीसरी जो मोदी जी की सरकार होगी उसमें बहुत कुछ नयापन भी होगा, यानी नए प्रयोग भी होंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि वह एक बैलेंस तरीके से जिस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं वो बढ़ेगा। लेकिन तीसरे में हमारी मोमेंटम की स्पीड, स्केल और स्किल ये हायर लेवल पे होगी और वो सारी चीज़ों में होगी। उनके चॉइसेस में भी होगी, उनके इश्यूज में भी होगी, उनके डायरेक्शन में भी होगी। क्योंकि 2014 में तो बहुत कुछ 2009 से 14 का अंडू वाला पार्ट था, फिर मोमेंटम गेन करना था, फिर मोमेंटम गेन करके आगे बढ़े। 2019 में कोरोना भी आया, कई क्राइसिस भी आई, सबसे निपटते हुए आगे बढ़े। अब पूरा मोमेंटम में गियर्ड है, वो आगे पूरी तीव्र गति से। Nada ji, I know that you will not answer this, but let me still try for our viewers. As a party president and as a leader of the party, which is once seen 2 Sansad and now you're looking at 400 Sansad, that's your task. What would you consider as your biggest legacy when you, in fact, as the president of the party? देखिए, लेगेसी वहाँ चलती है जहाँ हम इंडिविजुअलिस्टिक थॉट प्रोसेस में रहते हैं, हम कलेक्टिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं। इसलिए कलेक्टिव थॉट प्रोसेस में, और ये 18 करोड़ की पार्टी, और चलिए हमारा जन्म 1980 में हुआ, लेकिन आइडियोलॉजिकली तो 1952-53 से हम जनसंघ से चल रहे हैं और बीजेपी के 10 प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं। और अगर हम देखें तो अगर हम पीछे जोड़ लें जनसंघ को तो हमारी बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो सभी लोगों ने अपना अपना, एवरीबडी हैज पार्टिसिपेटेड एंड कंट्रीब्यूटेड देयर बिट, जो उन्होंने अपना योगदान किया। मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। लेकिन ये एक पार्टी है जो एक स्ट्रीम में चलती है, तो उस स्ट्रीम के ब्रॉडर स्ट्रीम में ही मैं भी चला हूँ और आगे भी जो आएंगे वो भी उसी में चलेंगे। हाँ, इस कंटिन्यूटी को स्पीड देना ये हमारा काम है। वो हमारे बाद भी जो आएगा वो हमसे ज़्यादा स्पीड देगा। नड्डा जी, थैंक यू सो मच, आपने सब हमारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन CNN News 18। And we'll wait to see the results on the 4th of June. Sure, we'll be there.